मैम और आपने भी बताया कि आपने ऑलमोस्ट हर तरीके का करिकुलम जो है वो पढ़ाया है और उसे लीड भी किया है। क्या डिफरेंस है इन करिकुलम्स में? एसेंशियल डिफरेंस मेथोडोलॉजी में होता है और क्लासरूम ट्रांजैक्शन में होता है, फोकस में होता है। एक मिथ ये भी है कि जो बच्चे इंटरनेशनल करिकुलम पढ़ते हैं शायद उन्हें बाहर ही जाना होता है पढ़ने के लिए। ऐसा नहीं है। इट्स नॉट अबाउट द मार्क्स दैट यू ब्रिंग, इट्स नॉट अबाउट हैविंग स्टडीड फ्रॉम सम प्रीमियर इंस्टीट्यूशन। आई थिंक द लाइफ इज मोर अबाउट रियल लाइफ स्किल्स। एज आई सेड, आपको जॉब शायद मिल जाए आपकी डिग्री से और आपके 99 या ऑलमोस्ट 100% से, लेकिन आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे शायद, आपके पास स्किल्स नहीं है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो बाहर पढ़ना चाहते हैं और बड़े सक्सेसफुली दे गेट एडमिटेड इनटू इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज एंड दे आर एबल टू अडैप्ट वेरी वेल। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ एडेक्स टॉक्स। आज मेरे साथ हैं डॉक्टर नीता बाली, डायरेक्टर एकेडमिक्स ऑफ एमवीएन ग्रुप ऑफ स्कूल्स। शी हैज़ ऑलमोस्ट 4 decades of experience in the education industry, very charismatic personality and also one of the pioneers जब हम education industry में IB जैसे करिकुलम्स लाने की बात करते हैं या इनोवेटिव अप्रोच लाने की बात करते हैं। सो थैंक यू सो मच मैम कि आपने टाइम निकाला फॉर द शो विद अस। Thank you so much for having me on the show. Very kind of you. It's our pleasure. And this video is going to be again very insightful when we're talking about the education aspects. स्कूल स्टूडेंट्स के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए खासकर ये एपिसोड बहुत वैल्यूएबल होने वाला है। सो इफ़ यू आर समवन हु इज़ इन दिस कैटेगरी, मेक श्योर कि आप ये वीडियो एंड तक देख रहे हैं। एंड इफ़ यू नो एनीबडी हु इज़ ईदर अ स्टूडेंट, अ पेरेंट और अ टीचर, मेक श्योर कि आप ये वीडियो उनके साथ शेयर कर रहे हैं। So without any delays, can we start the conversation, ma'am? Thank you, Barisha, first for having me on the show. That's really kind of you. It's our pleasure. As you very rightly said, it's been a long journey of 40 years. 40 साल की journey है. It's been a very interesting, very eventful journey. और मुझे लगता है ये जो journey बहुत enriching रही है, बहुत diverse रही है. It has only taught me that there is still more to learn. Okay. Because the learning just never seems to stop. There is still more to learn. And I think as a teacher and educator, I'm also a lifelong learner. So I'm hoping to take this journey of learning forward in the coming years as well. That's a wonderful perspective, ma'am, because I think all of us are lifelong learners. It's only how we perceive it and how open we keep ourselves. Right, right. So as you already mentioned that you started as a teacher, before I dive into more aspects of these 40 years, I would like to know what was before that. So maybe your childhood or your inclination towards education, was it natural? Was it some situation that took you to that path? How did you actually come in this industry? Yeah, good question. I would not say that initially when I started my learning in institutions of higher learning, I did my honors in English from Miranda House, followed by a post-graduation degree and a degree in also in psychology, a degree then in management, and so on and so forth. But having said that, it was never my intention to come into teaching. It wasn't intentional. Okay. I would say it was incidental. Because I had taken a degree, a bachelor's degree in education from the Central Institute of Education, University of Delhi. So I told my parents, maybe it's worth trying. Let me go into teaching for some time. And I joined Mater Dei as a teacher of English. But once I was there for about after 2 years, I think I got hooked, so to say. In the sense that मुझे लगा कि शायद teaching is my calling in life. Because as I moved forward, I found it very rewarding. I found it very gratifying. Okay. I found it very enriching. And of course, I was very, very close, had a close affinity with the children who I was teaching. And then I think the journey just rolled on. So, as I said initially, 18 years, 19 years as a teacher, as a hardcore classroom teacher, who taught the ICSE and ISC and then subsequently CBSE. And then of course, transitioned to administration with the APJ group. And then went on to the GD Goenka group, so on and so forth. मैम और आपने भी बताया कि आपने ऑलमोस्ट हर तरीके का करिकुलम जो है वो पढ़ाया है और उसे लीड भी किया है, बीट CBSE, ICSE, IB, कैम्ब्रिज। अगर आप उनकी थोड़ी सी डिटेल्स हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कर सकते हैं कि क्या डिफरेंस है इन करिकुलम्स में, एंड ऑल्सो हाउ आर इंडियन स्टूडेंट्स फिटिंग इन दीज करिकुलम्स? Barisha, the fact is,
चारों करिकुलर 3-4 करिकुलर की जिसमें जो मैंने बात करी, CBSE है, ICSE और ISC है, IB है और कैम्ब्रिज है। देखिए, एट द हार्ट ऑफ ऑल करिकुलर, कोई भी करिकुलर, उसका जो सेंटर होता है वो हमेशा स्टूडेंट होता है। ओके, ठीक है, द स्टूडेंट इज द सेंटर ऑफ ऑल लर्निंग। वी हैव टू गो विद दिस नोशन। कोई भी करिकुलम पढ़ाएंगे आप, स्टूडेंट वो सेंटर होता है उस लर्निंग का। हैविंग सेड दैट, जो CBSE होता है और जो ICSE और ISC होता है, जो नेशनल करिकुलर है, उसके अंदर जो थ्रस्ट होता है, एम्फेसिस होता है, आई थिंक द एम्फेसिस इज लिटिल मोर टिल्टेड टुवर्ड्स कंटेंट, okay, books. All right, books are like a very important tool which is used in the classroom. जो किताबें Right. हैं, that is a very important tool which is used in the classroom. और जो transaction होता है, classroom transaction होता है, mostly I would say that is teacher driven. जो teacher driven रहता है वो। लेकिन अभी now with the evolution of NEP 2020, with the implementation of NEP 2020, there is going to be a change and the change is already reflecting. okay, जो shift है अब वो टीचर ड्रिवन टीचिंग लर्निंग से स्टूडेंट ड्रिवन टीचिंग लर्निंग में होने लग गया है, नेशनल करिकुलम में, CBSE में भी और ICSE ISC में। okay, हैविंग सेड दैट, अब आपने मेरे से ये सवाल पूछा कि IB और कैम्ब्रिज जो इंटरनेशनल करिकुलम, वो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए सूटेबल है या नहीं है, उसको आंसर करने से पहले लेट मी टॉक अबाउट द फैक्ट दैट हाउ इज इट दैट IB एंड कैम्ब्रिज आर डिफरेंट फ्रॉम द नेशनल करिकुलम। right, IB एंड कैम्ब्रिज जो होते हैं वो टोटली स्टूडेंट ड्रिवन करिकुलर होते हैं। वन, दे आर नॉट करिकुलर दैट फोकस ऑन कंटेंट। okay, जो लर्निंग होती है उसका फोकस कंटेंट नहीं होता, किताबें नहीं होती, लर्नर होता है। It is not about what you want to teach the kids, it's about what the children want to learn. okay, See, that is the basic difference. It's about what they want to learn. जो फोकस होता है इसमें नहीं होता कि कितना पढ़ा सकते हैं क्लासरूम में, फोकस इसमें होता है कि बच्चा कितना एब्जॉर्ब कर सकता है और कितना लर्न कर सकता है और हमसे कितना ले सकता है। तो IB करिकुलम इज वेरी रिसर्च ओरिएंटेड। अगर मैं कैम्ब्रिज की बात करूं, कैम्ब्रिज अगेन इज अ करिकुलम दैट इज वेरी ग्लोबल इन नेचर। उसमें एक सब्जेक्ट रहता है ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स। अब ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स जो क्लास 4 से शुरू होता है और क्लास 12 जिसको A लेवल्स कहते हैं उस तक चलता है। okay, Every year, every grade children can take global perspectives as a subject. अब उसमें भी आपको as I said interdisciplinary teaching learning रहती है और आपको projects बनाने होते हैं। Again, those projects are based on research. right, So which forces you not only to look at your project in terms of Indian context, because today children don't want to be called just citizens of a country. You are a global. The world is a global village. right, और अगर आप इस बड़े से ग्लोबल विलेज में रह रहे हैं तो आपका आउटलुक भी वैसा होना चाहिए, बिल्कुल, उसी तरह से ग्लोबल होना चाहिए। सो एसेंशियल डिफरेंस मेथोडोलॉजी में होता है और क्लासरूम ट्रांजैक्शन में होता है, फोकस में होता है। और IB और कैम्ब्रिज इज टोटली स्टूडेंट ड्रिवन और फोकस सिर्फ लर्नर पे होता है, टीचर पे नहीं होता। और जब भी हम इसकी बात करते हैं, जब भी मैं टीचर्स को ट्रेन करती हूँ, वो चाहे IB के टीचर्स हो, कैम्ब्रिज के हो, CBSE के, ISC के, मैं हमेशा उन्हें ये कहती हूँ कि आपका जो TTT टीचर टॉक टाइम, okay, उसको सिर्फ 30% होना चाहिए और STT स्टूडेंट टॉक टाइम उसको कम से कम 70% होना चाहिए। okay, तो आप अगर ऐसा करेंगे, आप स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी देंगे, इफ़ यू एम्पावर योर चिल्ड्रन, if you empower the learner, then the teaching learning is going to be very effective. Whatever the curriculum, the teaching learning is going to be very effective. good, दूसरा सवाल आपने मेरे से ये पूछा था कि Indian students, how do they adapt to international curriculum? yeah, See, मुझे लगता है all learners, हर बच्चा क्यूरियस होता है, हर बच्चा चाहता है कि वो empowered हो, सवाल पूछने की पूछने की क्षमता हर बच्चे में होती है। एवरी चाइल्ड हैज अ कैपेसिटी टू आस्क क्वेश्चंस। आई थिंक उस तरह से इंटरनेशनल करिकुलम वो बहुत अपॉर्चुनिटीज देता है लर्नर्स को। okay, और एक मिथ ये भी है कि जो बच्चे इंटरनेशनल करिकुलम पढ़ते हैं शायद उन्हें बाहर ही जाना होता है पढ़ने के लिए। ऐसा नहीं है, बिकॉज इंडियन करिकुलम जो इंटरनेशनल करिकुलम जैसे IB या कैम्ब्रिज, दे आर कम्प्लीटली रिकग्नाइज्ड बाय AIU,
AIU is Association of Indian Universities. Okay. तो जो बच्चे भी इंटरनेशनल करिकुलम पढ़ते हैं, चाहे वो IBDP पढ़े, IBCP पढ़े या ASNA लेवल पढ़े, वो सब बच्चे इंडिया में पढ़ सकते हैं. According to there is a recognition document for each of these international curricula, and all these international curricula, ये सब international curricula जो हैं AIU से recognized हैं, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी से रिकग्नाइज्ड हैं. Okay. तो ये जो मिथ है कि जो बच्चे इंटरनेशनल करिकुलम पढ़ते हैं उनको सिर्फ बाहर जाना है, ऐसा नहीं है. So that's equally recognized Yes. in India. वो किसी भी More than entrance के लिए recognized, बैठो. not just in India, across the world. Got it. Yeah. Got it. And that recognition across the world, do we have it for our national curriculum as well? Most definitely. Okay. See, nowhere does it say, because हर यूनिवर्सिटी की, हर कंट्री की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं. ठीक है, मान लीजिए आप अगर कंपैरिजन करें, हम CBSE का कंपैरिजन करें और IB डिप्लोमा का, टॉप नॉच Tier 1 यूनिवर्सिटीज जो हैं वर्ल्ड की, अगर वो CBSE का बच्चा लेंगे तो उनके अपने एक CBSE के लिए अलग बेंचमार्क होगा. Okay. इट विल प्रॉब्ली बी 95% एंड अबव, वो बेंचमार्क रहेगा. अगर आप IB का स्टूडेंट लेंगे तो उनका बेंचमार्क होगा मे बी 42 और 43 पॉइंट्स आउट ऑफ 45. तो बेंचमार्क हर यूनिवर्सिटी का, हर कॉलेज का अलग रहता है. CBSE के लिए अलग नॉर्म्स होंगे, बेंचमार्क्स अलग होंगे, IB या कैम्ब्रिज के लिए अलग बेंचमार्क्स होंगे. लेकिन जो नेशनल करिकुलम है, CBSE करिकुलम, मुझे लगता है सालों के, डेकेड्स के हिसाब से, चिल्ड्रन हु हैव स्टडीड द नेशनल करिकुलम CBSE और IC, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो बाहर पढ़ना चाहते हैं और बड़े सक्सेसफुली they get admitted into international universities and they're able to adapt very well. Because जैसे मैंने कहा, it doesn't depend so much on the curriculum. Curriculum पे ज़्यादा करता है to a great degree, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा स्कूल की ethos और कल्चर पे भी डिपेंड करता है. बहुत सारे स्कूल्स हैं जो CBSE पढ़ाते हैं, बट उनका जो आउटलुक है that encourages international mindedness through student exchanges, through exposure, through summer schools. So there are various ways through probably British Council British Council programs that used to happen earlier. So it's not so much about the curriculum you teach, it's about how you teach and the culture that you nurture in an institution. Got it. So as such, ऐसा कुछ नहीं है कि जो नेशनल करिकुलम पढ़ता है वो अच्छे इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में नहीं जा सकता. Got it. It's a level playing field for everyone. Got it. And also ma'am, जैसे कि अभी a very good point that has been put forth by you is how that's being taught, and also स्कूल का कल्चर कैसा है, स्कूल के ethos कैसे हैं. I feel particularly in the last few years हम इस चीज़ में इवॉल्व हुए हैं दैट हम एकेडमिक रिगर के साथ साथ होलिस्टिक डेवलपमेंट पे भी आ रहे हैं, particularly with NEP being in place now. How do you feel, is that important? What role is it playing? Because for a long time हमने शायद उतना एक्स्ट्रा करिकुलर्स पे या इवन फॉर दैट मैटर ह्यूमैनिटी जैसे सब्जेक्ट्स पे उतना फोकस नहीं दिया है इंडियन पेरेंट्स और स्टूडेंट्स ने. अब जब उस चीज़ पे फोकस है, हाउ इज़ दैट इवॉल्विंग, व्हाट अपॉर्चुनिटीज टू स्टूडेंट्स हैव एंड उसकी इम्पोर्टेंस क्या है? फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड एकेडमिक रिगर. मुझे लगता है एकेडमिक रिगर हर स्कूल की बैकबोन होती है. ओके. Any good school should be able to promote academic rigor in a classroom. True. That's a non-negotiable. वो उस पे आप कोई compromise नहीं कर सकते academic rigor पे. लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि अगर academic rigor है तो आपको ये भी देखना है कि आप दूसरी opportunities भी दें, because the world is not just about the marks that you take. Right. When you go into this world and in the job market particularly, it's not about the marks that you bring. It's not about having studied from some premier institution. I think the life is more about real life skills. जो हम कहते हैं ना 21st century skills. Actually वो 21st century skills नहीं, मुझे लगता है वो perpetual skills हैं. हमेशा से ये skills रहे हैं, जो skills हैं the skills of communication, the skills of collaboration, the ability to work with other people. आप दूसरे लोगों के साथ मिलके काम नहीं कर सकेंगे जॉब मार्केट में तो आप शायद सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे. सो आई थिंक academic rigor
एक पहलू है। दूसरा पहलू है कि क्या स्किल्स आपने लर्न किए अपने स्कूल में और अपने कॉलेज में। अगर आपने वो स्किल्स ऑफ कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, स्किल्स ऑफ आर्टिकुलेशन, स्किल्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, सबसे बड़े जो ये आपने स्किल्स अगर लर्न नहीं करे, क्रिटिकल थिंकिंग आपने स्किल्स लर्न नहीं किए, तो शायद आपको जॉब मिल जाए लेकिन आप शायद जॉब मार्केट में सर्वाइव ना कर पाए क्योंकि आपके पास राइट स्किल्स नहीं है। तो आप वो स्किल्स कहाँ से सीखेंगे? सिर्फ एग्जाम, पेन एंड पेपर एग्जाम या वो 98% मार्क्स से वो स्किल्स नहीं आने वाले। वो स्किल्स आएंगे जब आपके स्कूल के अंदर आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। द अपॉर्चुनिटी, लेट अस से नाउ स्कूल्स आर ऑफरिंग अपॉर्चुनिटीज थ्रू MUNs एंड टेड टॉक्स। और हमारे अपने स्कूल्स में भी, और जितने स्कूल्स को मैंने हेड किया है, ऑल इवेंट्स हैव टू बी स्टूडेंट ड्रिवन। राइट। सारे इवेंट्स कंसेप्चुअलाइज स्टूडेंट्स करते हैं। स्टूडेंट्स नीड टू कंसेप्चुअलाइज, they need to plan, they need to organize, they need to conduct, and then they finally need to critically evaluate कि उन्होंने कैसे इवेंट किया। तो इस सारे प्रोसेस में बच्चों को बहुत सारे स्किल्स आ गए। द स्किल्स ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन, the skills of organization, the skills of collaboration, working with other people, the skills of critically evaluating the impact that you have made. और अगर आपको स्किल्स स्कूल ने नहीं सिखाए थ्रू एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, तो फिर आप कहीं रैट रेस में पीछे रह जाएंगे। एज आई सेड, आपको जॉब शायद मिल जाए आपकी डिग्री से और आपके 99 या ऑलमोस्ट 100% से, लेकिन आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, शायद आपके पास स्किल्स नहीं है। सो होलिस्टिक एजुकेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ऐसी एजुकेशन जो स्किल बेस्ड है, ऐसी एजुकेशन जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन है। अगर आपके पास 21st सेंचुरी कॉम्पिटेंसीज नहीं है तो आपकी एजुकेशन इज हाफ बेक्ड। तो ये बहुत ज़रूरी है। आई थिंक ये अपॉर्चुनिटीज सिर्फ स्कूल्स दे पाते हैं। और ये अपॉर्चुनिटीज आपको कोर्स स्कॉलास्टिक एक्टिविटीज हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स है, which teaches you not just to succeed but how to fail, and fail with tenacity, you know, and how to bounce back. आपको स्पोर्ट्स ये सिखाएगा। MUNs हैं, डांस है, म्यूज़िक है, आर्ट्स है, कल्चर है। अगर आपने ये सब नहीं किया तो आपके जो नेसेसरी स्किल्स हैं वो आप कभी नहीं सीख पाएंगे। सो स्कूल्स नाउ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग दीज अपॉर्चुनिटीज थ्रू अ वेरी वेरी होलिस्टिक एजुकेशन। और हर स्कूल का ये व्हाट आई वुड से दैट्स देयर एथिकल ड्यूटी टू मेक श्योर दैट, एंड देयर प्रोफेशनल ड्यूटी to provide these opportunities to kids. और मुझे लगता है अब तो पेरेंट्स भी उन स्कूल्स के लिए कभी नहीं जाते जो सिर्फ एकेडमिक रिगर के लिए जाने जाते हैं। वो एक पार्ट है, लेकिन उस इक्वली इम्पॉर्टेंट है क्या अपॉर्चुनिटीज़ आप दे रहे हैं। क्या आप अपने स्कूल में करियर काउंसलिंग रखते हैं? आप बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस देते हैं? आप अपने आप को एक इंक्लूसिव स्कूल कहते हैं? क्या आप वो इंक्लूसिविटी, डज इट रिफ्लेक्ट इन योर करिकुलम, इन योर डेली बिहेवियर, in your daily classroom activities? कुछ ऐसे बच्चे हैं जो शायद they learn differently. Right. Are you helping those kids? So before schools start making tall claims, every school has to know that education is not just about marks. Education goes beyond grades. Right. And education is a very holistic concept, and it includes one's, of course, academic, emotional, psychological and physical growth. You know, one point that you mentioned while you were explaining these responsibilities of the school was also career counseling. उस पर भी थोड़ा सा मैम मैं चाहूँगी कि आप डिस्कस करें कि उस चीज़ की क्या इम्पोर्टेंस है, बिकॉज आई फील दैट इज़ स्टिल अ वेरी निगलेक्टेड पार्ट, और ना कि सिर्फ स्कूल या एजुकेशनिस्ट की तरफ से, बट इवन पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स अभी तक उसे बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं, because they feel mostly it's only about marks or it's only about fitting 3-4 criteria, जैसे कि हम filter लगा के match कर लेंगे, but it's more about human, like that student, उसकी पूरी life का वो सवाल होता है। So what is your take on that? And अगर आप इसके ऊपर students and parents के लिए एक छोटा सा message दे सकें। Sure. जैसे आपने बोला बरीशा, career counseling has still to come of age, at least in places in India, in some parts of India. करियर काउंसलिंग को हमेशा एक पेरिफेरल फंक्शन की तरह ट्रीट करते हैं। जब मैं पेरिफेरल फंक्शन बोलती हूँ तो इट्स समथिंग विच इज डिस्पेंसेबल, यू नो।
लेकिन अच्छे स्कूल्स अब ये रियलाइज कर रहे हैं कि एक स्ट्रॉन्ग करियर एडवाइजरी सेल मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है हर स्कूल में। उसका रीज़न मैं ये कहूँगी कि अब पेरेंट्स बहुत अवेयर हैं। Right. Career avenues have opened out. There are a lot of unconventional emerging careers. बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं अभी भी उसी ग्रूव में स्टक हैं, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, लॉ, चार्टर्ड अकाउंटेंसी एंड मे बी 3-4 मोर। लेकिन अब तो आई थिंक द वर्ल्ड इज चेंजिंग, द वर्ल्ड इज चेंजिंग ड्रामेटिकली, एंड मे बी बाय एवरीबडी सेज बाय 2030 you probably will not have a lot of professions that exist today. And with the advent of AI, I think life is changing very, very rapidly. The workplace is changing very rapidly. Of course. अगर workplace change हो रही है, careers change हो रहे हैं, तो उन careers के बारे में बताने के लिए भी तो लोग चाहिए, और trained career counselors चाहिए। ना सिर्फ trained career counselors चाहिए, मुझे लगता है ऐसे career counselors चाहिए जो बहुत passionate हैं, who are ever evolving. क्योंकि ये करियर काउंसलर्स हैं, इनको भी दे विल हैव टू कीप पेस विद द चेंजिंग ट्रेंड्स इन द वर्ल्ड ऑफ वर्क। अगर जो करियर काउंसलर्स हैं उनको वर्ल्ड ऑफ वर्क के बारे में पता नहीं है, दे आल्सो हैव टू इवॉल्व, दे हैव टू लर्न, दे हैव टू रिसर्च कंटिन्यूसली। और हर स्कूल का फर्ज बनता है, आई एम यूजिंग द वर्ड, इट्स देयर ड्यूटी, and it's really the call of duty that every school appoints career counselors who are professionally trained, counselors who can help children with psychometric testing, जो psychometric testing करवा के ये बता सकते हैं कि बच्चे का aptitude, proficiency और interest क्या है। You know, if there are API tests that is called, and other psychological psychometric testing that happens, तो साइकोमेट्रिक टेस्टिंग करने के बाद ये पता लगता है एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी और इंटरेस्ट क्या है। देन अकॉर्डिंग टू दैट द चिल्ड्रन हैव टू बी गाइडेड। और ये करियर काउंसलर्स, ट्रेंड करियर काउंसलर्स जिनकी ऑनगोइंग रहती है ट्रेनिंग, यही कर सकते हैं। ट्रू। You and me or any other teacher cannot do it, you know, any teacher cannot do it. Of course they can, but जो trained career counselors होते हैं, they are trained for this job. So anybody can probably just read out a report, but then it's the personnel who can understand initial the student. information. Exactly. But hand holding वो और नहीं दे in-depth पाते। information वो एक career counselor ही बता सकता है। True. We need a person who's also connected to the academics and the industry and can understand the student well. And then the career counselor is able to tell young people about the emerging trends, and then kind of match your aptitude and the career that you are suited for. Right. What generally happens is, you know, a lot of people move ahead in their careers, and at the end of 2 decades they realize that my ladder is leaning against the wrong wall. कि जो मैंने करियर चूज किया है, शायद ना मैं इस करियर के लिए बना हूँ और ना मैं इसमें सक्सीड करूँगा, लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुका होता है। यू कांट टर्न बैक। ऑफ कोर्स देयर आर पीपल हु चेंज देयर करियर्स at many points in their lives, but सब इतने एडवेंचरस नहीं होते हैं। तो मुझे लगता है एक करियर काउंसलर हर स्कूल को, you know, there should be a ratio of students and career counselors. Every child from grade 8 upwards should have access to a good career counselor. Right. Because 8 के बाद ही आप डिसाइड करते हैं आप कौन से करियर की तरफ ग्रेविटेट करेंगे। तो हर बच्चे को करियर काउंसलर की सुविधा तो मुझे लगता है मिलनी चाहिए। आई थिंक बिल्कुल, everybody deserves it. It's a lifelong decision it's for a the lifelong student. decision. Yeah, completely, absolutely. Before we wind up, ma'am, one message that you could give to our viewers. Surely, our message for teachers is please give up your old practices, start adopting and adapting to new emerging technologies. Make sure that your classrooms are learner-centric and interesting, so that the takeaway for students and learners is great. And for parents, I would say most important for parents, please ensure that you support your students your children in their learning and their growing years. Give them unconditional love. Do not validate them only when they perform well. Make sure that your affection and support to the children is ongoing, unconditional, and unmitigated at all points of time. And that, I think, is a great parenting tip, because remember parents that ये जो साल हैं कुछ आपके बच्चों के साथ, ये साल फिर कभी आपके पास नहीं आएंगे. All that you'd be left with are memories of these few years that would have gone by in a jiffy. और अगर आप
इन सालों को मीनिंगफुल नहीं बनाएंगे तो आई डोंट नो इफ यू विल हैव ग्रेट मेमोरीज टू लुक बैक ऑन। थैंक यू सो मच मैम, अ वेरी ब्यूटीफुल मैसेज, वेरी मीनिंगफुल वन। आपने पूरी कॉन्वर्सेशन जो हमारे साथ की, अपने एक्सपीरियंसेस, अपने इंसाइट्स शेयर किए, थैंक यू सो मच। वी आर रियली ग्रेटफुल दैट यू टुक आउट दिस टाइम, एंड फॉर आवर व्यूअर्स एज वेल, आई एम श्योर यू हैव लव्ड द वीडियो, सो शेयर इट, डू नॉट कीप इट टू योर सेल्फ। अगर आपको कोई भी और चीज़ है आप जो आप चाहते हैं हम कवर करें, कोई आपके ओपिनियंस हैं, क्वेश्चंस हैं, पुट देम इन द कमेंट्स एंड वील मेक श्योर टू कवर देम, and do subscribe to the channel. Thank you so much for watching.